Hello everyone, welcome to iQuanta and I am Anmol and I am a faculty at iQuanta. So today we'll be discussing about the Ramsar Convention. So ये अपन ने जो सीरीज स्टार्ट किया है that is the most important current affairs. ठीक है, this is the part 4 of it. ठीक है, रामसर कन्वेंशन. अपन ने इससे पहले G7 इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एंड SC/ST के सब क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर ली है. दिस इज द पार्ट 4 ऑफ इट. ठीक है, ओके. सो रिसेंटली क्या हुआ है, this why this topic is in news. Recently ये हुआ है, 3 more Ramsar wetland sites now in India, taking the total to 85. टोटल अभी कितना है? 85. ठीक है, 85 साइट्स हैं अभी इंडिया में टोटल. ठीक है, सो प्रेजेंटली अभी 85 है. ठीक है, एंड इंडियाज रामसर वेटलैंड्स कंप्राइज अराउंड 10% ऑफ द टोटल वेटलैंड एरिया इन द कंट्री अक्रॉस 18 states. ठीक है, no other South Asian country has as many sites, though this has much to do with India's geographical breadth and tropical diversity. ये हुआ present news. बट हमें आगे क्या देखना है, देखो. रिसेंटली भी क्या हुआ है, द नानजरायन बर्ड सैंक्चुरी एंड काजुवेली बर्ड सैंक्चुरी इन तमिलनाडु along with the Tawa reservoir. ये फर्स्ट है, this is the second one and this is the third one. Tawa Reservoir in Madhya Pradesh have been recognized under the Ramsar Convention, bringing the total number to 85. So total 3 है. 3, एक आपका तमिलनाडु में, एक आपका मध्य प्रदेश में. ठीक है, दिस इज अबाउट द रीसेंट न्यूज. इससे पहले 82 थे, अभी 85 हो गए. करेक्ट. सो व्हाट आर वेटलैंड्स? वेटलैंड्स के बारे में बहुत डिस्कस कर रहे हैं, राइट? सो वेटलैंड्स, सो रामसर कन्वेंशन इज अबाउट वेटलैंड्स. सो वेटलैंड्स क्या होते हैं? Wetlands are the areas where water is the dominant factor influencing the environment and the types of plants and animals that live there. ठीक है, तो water एक बहुत बड़ा dominant factor होता है. Wetlands, right? तो wet land, तो wet में water आ जाता है, right? So in India, wetlands cover approximately how much? 1,52,600 square kilometers, which is about 4.63% of the total geographical area. So जितना भी geographical area इंडिया का है, उसका 4.63% is covered by wetlands. That is about 1,52,600 square kilometers. So wetlands किस चीज में हेल्प करते हैं? Wetlands help in regulating climate conditions through carbon sequestration, that is carbon storage from the atmosphere. According to the US Environmental Protection Agency, wetlands are among the most productive ecosystems in the world, comparable to rainforest and coral reefs. ठीक है, this is the second thing. Third, they play a crucial role in maintaining biodiversity, regulating water cycles and acting as natural water purifiers. ठीक है, तो इतने सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं वेटलैंड्स इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री. ठीक है, so there are 2 types of wetlands, natural versus artificial. By the name natural, जो कि natural phenomena से exist करते हैं, and artificial wetlands वो होते हैं जो कि human, that is man made होते हैं, right? So natural wetlands organize from naturally they organize through ecological processes such as the flooding of rivers or accumulation of rainwater. Artificial wetlands क्या होते हैं? They are created by human activities like constructed ponds, water treatment facilities designed to mimic natural wetlands. तो similarly आप natural जैसा ही आप artificial बनाते हो, आप mimic करने की कोशिश करते हो. यही condition के हिसाब से you make it, right? Through human activities. Man-made process. This is how a wetland looks like. थोड़ा सा यहाँ पे blur हो गया है, यहाँ पे sunset हो रहा है, यानी यहाँ पे basically जो patches देख रहे हो आप एंड लैंड है साइड में, दैट इज हाउ वेटलैंड्स आर देयर. ठीक है, रामसर कन्वेंशन देखो. रामसर कन्वेंशन, यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है. रामसर साइट्स आए हैं, दैट्स व्हाई वी नीड टू नो व्हाट्स रामसर कन्वेंशन. फर्स्ट, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी. ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल मतलब सारे हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एज एन इंडिविजुअल cannot be a signatory to the Ramsar Convention. Nation states, they have to be a party to this treaty. Total signatories कितने? 172. ठीक है, एंड अगर यहां पे देखोगे, रामसर इज अ सिटी इन द कंट्री ऑफ ईरान. ठीक है, ये पता होना चाहिए. इट्स इन द ईरानियन सिटी
दैट इज रामसर। अडॉप्टेड, कब अडॉप्ट हुआ ये, यहां पे आपको जानना जरूरी है। 2 फरवरी 1971, ठीक है। Adopted on 2nd February 1971 in the city of Ramsar on the southern shore of Caspian Sea, ठीक है। एनफोर्स कब हुआ था, 1975 में, ठीक है। 1975 में एनफोर्स होता है इन इंडिया, ठीक है। यहां पे एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि एनफोर्स्ड इन द वर्ल्ड, एनफोर्स्ड इन इंडिया, दोनों में फर्क है। अ ट्रीटी मे बी एनफोर्स्ड इन द वर्ल्ड एट अ डिफरेंट टाइम, अ ट्रीटी मे बी एनफोर्स्ड इन इंडिया एट अ डिफरेंट टाइम। तो यहाँ पे 1975 में इट वॉज इन्फोर्स्ड इन द वर्ल्ड, बट इंडिया में इट वॉज इन्फोर्स्ड ऑन 1st of February 1982, under which wetlands of international importance are declared as Ramsar sites. सर अब देखोगे फर्स्ट जो हमारे रामसर साइट्स थे, दैट इज वन इज चिल्का लेक, which is there in Odisha. Second is Keoladeo, Keoladeo National Park in Rajasthan. ठीक है। देन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स, सो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा साइट्स एक कंट्री में होने चाहिए, दैट इज इन यूके, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। कितने हैं, 175 साइट्स हैं, 175, ठीक है। फॉलोड बाय मैक्सिको विथ 142 साइट्स, ठीक है। देन बोलिविया इज अ कंट्री विच हैज द लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स अलग हो सकती हैं बट लार्जेस्ट एरिया, फॉर एग्जांपल हो सकती कम साइट्स हो बोलिविया के पास बट एरिया वाइज सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो बोलिविया एज अ कंट्री हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द रामसर प्रोटेक्शन, स्पैमिंग ओवर 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर हम लोएस्ट रामसर साइट की बात करें, दैट इज फीफा नेचर रिजर्व इन जॉर्डन, ठीक है, लोकेटेड 426 मीटर बिलो सी लेवल। बट यहां पे हम लोग अगर ये बात करें लार्जेस्ट रामसर साइट की, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। एंड द फर्स्ट रामसर साइट इन द वर्ल्ड, ठीक है, फर्स्ट रामसर साइट हमने इंडिया की तो बात कर ली है, जो कि ये बेसिकली 1981 में डेजिग्नेट होते हैं, 1981 एंड 1982 में तो एनफोर्स हो जाता है, राइट। सो 1981 में बेसिकली दे वर द फर्स्ट 2 साइट्स, लगातार साथ में ही ये लोग ये जो 2 हैं दीज वर डेजिग्नेटेड, करेक्ट। एंड फर्स्ट रामसर साइट इन द वर्ल्ड इज कूबर्ग पेनिनसुला, कौन सा कंट्री में ये, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ओके, मूविंग हेड। सो क्राइटेरिया क्या है, कौन से ऐसे वेटलैंड्स हैं जिसको आप रामसर प्रोटेक्शन देते हो। द सिलेक्शन ऑफ रामसर साइट्स इज बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया डिफाइंड अंडर द कन्वेंशन, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ वेटलैंड शुड बी कंसिडर्ड इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट इफ इट सपोर्ट्स प्लांट एंड और एनिमल स्पीशीज at a critical stage in their life cycles or provide refuge during adverse conditions. It also looks at the site's capacity to support fishes and water birds. ठीक है, तो ये वन ऑफ द क्राइटेरिया है, वेरियस क्राइटेरिया है जो कि हमें जानने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्यों है बताओ, कुछ क्राइटेरिया है, ये दिस इज वन ऑफ देम, हमें इतना जानना जरूरी नहीं कौन से क्राइटेरिया है, क्यों, बिकॉज हम रामसर कन्वेंशन के अंडर नौकरी नहीं करना है, राइट। हमें ये जानना जरूरी नहीं है कि कौन से क्राइटेरिया एग्जैक्टली यूज हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। एक कोई कम से कम एक टीम बैठी होगी जो ये करता होगा, हमें ये जानने की जरूरत नहीं है। क्लैट के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जस्ट नो कि ऐसे क्राइटेरिया एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो यू कैन जस्ट राइट कि ऐसे वेरियस क्राइटेरिया, एंड ऑल्सो अगर मान लीजिए आपसे क्राइटेरिया पूछ भी लेते हैं, देन यू कैन यूज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन इन द एग्जाम कि अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। वहां पे आप एलिमिनेट आराम से कर लोगे, ठीक है, जानने की जरूरत है नहीं, ठीक है।
अब बेसिकली देखते हो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है या नहीं, कितना ज़्यादा सपोर्टिव है फॉर द प्लांट्स एंड ऑल, तो वो है। ठीक है, ओके। देन यू नीड टू नो अबाउट वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ठीक है, अब तक तो रामसर कन्वेंशन हमने समझ लिया, रामसर कन्वेंशन ये चीजें हैं, राइट। देन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब सेलिब्रेट हुआ है पहले, मतलब कब सेलिब्रेट होता है, दैट इज 2 फरवरी। यस, ये वही दिन है जब का रामसर कन्वेंशन बनता है। सिंस व्हेन, सिंस 1971, नो, सिंस 1997, मतलब जब भी ये बना था उस टाइम से हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट 1997 से हमने इसे सेलिब्रेट करा। What is the theme for 2024? That is wetlands and human well-being, which underscores the critical role wetlands play in enhancing our lives. ठीक है, ओके। रामसर फॉर इंडिया, रामसर फॉर इंडिया, अब तक हमने रामसर कन्वेंशन के बारे में बात की वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, बट इंडिया में कौन सी चीजें हैं। व्हाट इज द फर्स्ट रामसर साइट, दिस इज अपन ने डिस्कस कर लिए, फिर से देख लेते हैं, दैट इज चिलिका लेक इन ओडिशा प्लस क्योला देव नेशनल पार्क, कहाँ है ये, राजस्थान में। ये दोनों को साथ में डेजिग्नेट करते हैं हम कब, 1981 में, 1982 में इंडिया में इन्फोर्स हो जाता है, राइट, दैट इज फर्स्ट ऑफ फरवरी। व्हेन वर दे एडेड, दैट इज 1981। साथ में लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया कौन सा है, वो सुंदरबंस। तो स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सा है, दैट इज वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। कहाँ है ये, दिस इन तमिलनाडु। एंड रेणुका वेटलैंड इन हिमाचल प्रदेश। These two are the smallest Ramsar sites, दोनों के सेम, ऑलमोस्ट सेम सरफेस एरिया है। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स विद स्टेट, दैट इज, अगर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे अंदाजा लगा लो, यहाँ पे हमने एक तमिलनाडु के बारे में बात कर लिया, 2 अभी ऐड हुए हैं, तो तमिलनाडु इज द स्टेट जहाँ पे सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, फॉलोड बाय द लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया, दैट इज यूपी। ठीक है, सेकेंड वन, फर्स्ट है तमिलनाडु। नेशनल वेटलैंड नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, NWCP, इट वाज लॉन्च्ड इन 1985। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिकली इंडियन इनिशिएटिव्स विद रेस्पेक्ट टू वेटलैंड्स। NWCP was launched in 1985 to tackle threats to vulnerable wetland ecosystem and enhance their conservation. Sorry, this is a tongue twister. Conservation. ठीक है, next 2015 National Plan for Conservation of Aquatic Wetlands. Wetlands are regulated under the Wetland Conservation, this time I got it right, Wetland Conservation and Management Rules 2017. So ये तीन चीजें बस आपको पता होना चाहिए कब इंट्रोड्यूस हुई थी एंड क्या नाम है, दैट्स इट। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया विद रिस्पेक्ट टू वेटलैंड्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, करेक्ट। ठीक है, मॉन्ट्रिक्स अकॉर्ड, मॉन्ट्रिक्स अकॉर्ड क्या होता है, दिस अ सीवियर फॉर्म, मतलब अगर आप देखोगे तो रामसर कन्वेंशन अगर ये है, मॉन्ट्रिक्स अकॉर्ड ये है, क्यों, क्योंकि रामसर कन्वेंशन में से जो और ज्यादा हाईली क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है, वेटलैंड जिसको स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है, ठीक है, उसको हम लोग मॉन्ट्रिक्स अकॉर्ड में डालते हैं। व्हाट इज मॉन्ट्रिक्स अकॉर्ड, मॉन्ट्रिक्स अकॉर्ड इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑन द लिस्ट ऑफ रामसर वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, वेयर कंडीशन यहां पे ये है, वेयर चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड, बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, आर अकरिंग और कुड लाइकली टू अकर as a result of technological developments, pollution
और अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस, जहां पे ऐसा चीजें हो सकती हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पोल्यूशन एंड अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से देयर कुड बी चेंज इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर, और अकर हो रहे हैं या अकर हो चुके हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सारे ही केसेस में हम मॉनिटरिंग रिकॉर्ड में डाल सकते हैं। ठीक है, it is a voluntary mechanism to highlight specific wetlands of international importance that are facing immediate challenges. It is maintained as part of the list of Ramsar wetlands of international importance. Establish कब हुआ था ये? 1990 में। कौन से ऐसे इंडियन रामसर साइट्स हैं जो कि मॉनिटरिंग रिकॉर्ड में है? फर्स्ट, लोकताक लेक in Manipur. Second, Keoladeo National Park. कहाँ पे ये? राजस्थान. थर्ड, चिलिका लेक. नहीं, चिलिका लेक अब हट चुका है। ठीक है, चिलिका लेक पहले था, कब तक? 2002 तक। इन 2002 इट वाज रिमूव्ड। क्यों? क्योंकि इसको जितनी स्पेशल अटेंशन जरूरत थी उसको उतनी मिल गई है, एंड इट हैज, आई मीन, वहां पे अगर आप देखोगे तो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स हो चुके हैं, तो अब इसको जरूरत नहीं है दैट कि आप स्पेशल अटेंशन अब दो। तो नाउ करंटली दो ही हैं, लोकताक लेक इन मणिपुर, क्योलादेव नेशनल पार्क इन राजस्थान। ठीक है, सो दीज आर द साइट्स व्हिच आर देयर इन द मॉनिटरिंग रिकॉर्ड। ठीक है, यू आर डन फॉर द डे। सो इस पार्ट में हम वी आर नॉट सॉल्विंग एनी क्वेश्चंस, बिकॉज आई थिंक देयर इज नो नीड हियर, बिकॉज दीज आर प्योरली फैक्ट्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स है नहीं, जितने फैक्ट्स हैं आपको याद होना चाहिए। ये देखो, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी फैक्चुअल हैं, मतलब ओनली फैक्चुअल हैं, बाकी जो कंसेप्ट्स भी होते हैं थोड़ा सा, अब तक जितने भी टॉपिक्स करें अपन ने, तो यू शुड नो ऑल दीज फैक्ट्स। ठीक है, अभी 85 रामसर साइट्स हैं, आपको जितने ही फैक्ट्स अपन ने यहाँ पे पढ़े हैं उतना एटलीस्ट याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने खुद से और कुछ लिखे दैट्स ऑल्सो प्रीटी मच इट, कि आप क्या वहाँ पे याद कर लो। ठीक है, सो या दिस इज इट फॉर द डे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।